بریک کے بعد خوشامدید اور بلیٹن کے آغاز میں ہی آپ کو اپڈیٹ کریں، نگراں حکومت سیٹ اپ کیا ہوگا، انتخابات کب ہوں گے؟ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری میں ہوئی اہم ملاقات۔ آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے ان کے گھر پہنچے، جہاں دونوں رہنما باہیں پھیلا کے ملے۔ ہمارے نمائندے الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الفت، بڑی ہی زبردست ملاقات رہی، پھر الفت کچھ بڑھی؟ جی بالکل، یقیناً الفت بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سابق صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور ملاقات تقریباً 1.25 گھنٹہ جاری رہی۔ اس ملاقات میں مختلف امور، آئندہ انتخابات، نگراں سیٹ اپ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور بعض نکات پر سابق صدر آصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان اتفاق ہوا ہے۔ تاہم اس نے شہباز شریف نے وقت مانگا ہے کہ وہ اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لے، جس کے بعد مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کی لاہور میں انتہائی اہم سرگرمیاں جاری ہیں اور اس وقت سابق صدر کی ملاقات ایپٹما کے چیئرمین گوہر اجاز کی رہائش گاہ پر وہ پہنچے اور ان کی ملاقات گوہر اجاز سے جاری ہے اور گوہر اجاز کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ آئندہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ان کا نام بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ تو سابق صدر زرداری کی انتہائی اہم سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد یہ ملاقات اب ایک دوسری اہم ملاقات اس وقت جاری ہے۔ جی الفت مغل ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اہم ملاقات، ایسے میں شہباز شریف آصف زرداری کی ملاقات میں آئندہ انتخابات مقررہ وقت پر کرانے پر ہوا ہے اتفاق۔ بات کریں گے اپنے نمائندے نذیر بھٹی سے۔ نذیر بھٹی، بتائیے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان لاہور میں ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی کے مطابق یہ ملاقات جو ہے وہ میاں نواز شریف سے آصف علی زرداری کی جو دبئی میں ملاقات تھی اس کا فالو اپ ہے اور اس کے مطابق یہ طے ہوا ہے کہ 12 اور 13 اگست کی درمیانی رات جو ہے وہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، تو اس کے ساتھ ہی تحلیل کر دی جائے گی اور مقررہ وقت پر ہی انتخابات جو ہوں گے۔ یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ طے ہوا ہے کہ کسی سینئر سیاستدان کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا جائے اور کوئی ٹیکنوکریٹ یا کوئی اور کوئی جو ہے اس کو نہ لیا جائے۔ اس پر بھی اتفاق شہباز شریف کو آصف زرداری نے مبارکباد دی کہ آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ نذیر، یعنی کہ ان ناموں کی آپ تردید کر رہے ہیں جن کے نام لیے جا رہے تھے؟ جی، سینئر سیاستدان پہ جو ہے وہ اتفاق لگتا ہو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور یہ اتفاق رائے ان کے درمیان جو اب تک ذرائع کے مطابق جو ہے وہ موجود ہے اور نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے یہ بھی ہوا ہے کہ وقت پر ہی انتخابات ہوں گے اور 2 ماہ کی مدت جو ہے وہ تقریباً ہوگی، چونکہ یہ اسمبلیاں جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر رہی ہیں۔ تو اس میں بھی اتفاق ہوا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے زور دیا ہے کہ وہ اپنی اتحادی جماعتیں جو ہے وہ وزیر اعظم ان کو اعتماد میں لیں اور دیگر صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول میں کیا جائے۔ بہت شکریہ نذیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، الفت مغل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی رہائی آج بھی ممکن نہ ہوئی۔ بینکنگ کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے بھی روپکار جاری ہوئے۔ وکلا روپکار لے کر پرویز الہی کی رہائی کے لیے کیمپ جیل پہنچے لیکن رہائی نہ ملی۔ حسن حفیظ سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ حسن، بتائے گا کیوں رہائی نہیں مل سکی؟ دیکھیں جی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جو ہے وہ آج سارا دن ان کا انتظار کیا جاتا رہا کہ ان کی رہائی ممکن ہو سکے، لیکن ابھی میں اس وقت کیمپ جیل کے دروازے پر ہی موجود ہوں۔ میرے عقب میں جو یہاں پر دروازہ ہے، یہاں پر کچھ ہی دیر پہلے یہاں پولیس کھڑی ہوئی تھی اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی یہاں سے رہا ہوتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے انتظامات سنبھالے جائیں، لیکن روپکار جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جیل حکام کو پہنچائی جا چکی ہے۔ دوسری جانب جیل حکام کا کہنا ہے کہ یہاں پر روپکار عدالتی وقت سے کے بعد پہنچی ہے، عدالتی وقت ختم ہو چکا، جیل کا وقت ختم ہو چکا ہے اور جیل کا وقت ختم ہونے کے بعد رہائی ممکن کسی صورت نہیں ہو سکتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ پہلے بھی جب چودھری پرویز الہی کی روپکار عدالت آئی تھی تو ایک مقدمے میں جب ان کو رہا کیا گیا تو ساتھ ہی دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ اچھا حسن، یہ بھی بتائیے گا کہ کہا جا رہا تھا کہ پولیس کی ایک بھاری نفری جیل کے باہر موجود ہے، وہ کیوں موجود تھی؟ کیا کسی اور مقدمے میں گرفتاری کا امکان تھا؟ دیکھیں، اس دفعہ یہ ہوا تھا کہ عدالت نے جو روپکار جو ہے وہ جعلی ہونے کے ساتھ ساتھ جو تحریری فیصلہ بھی دیا تھا کہ کوئی بھی اور مقدمے میں پرویز الہی کو گرفتار نہ کیا جائے، البتہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اور ممکنہ مزید گرفتاری کے پیش نظر
यहाँ पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस की तमाम टीमें मौजूद थी, एसपी, एसएसपी और तमाम उनकी टीमें यहाँ पर मौजूद थी। सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि चौधरी परवेज इलाही यहाँ से निकलें और उसके बाद कोई मुमकिना एक्शन लिया जाए। लेकिन क्योंकि जेल की तरफ से ये बात सामने आई कि जेल का वक्त खत्म हो चुका है और चौधरी परवेज इलाही को रिहाई नहीं मिल सकती है, तो क्या हसन मुमकिन है कि कल सुबह उनको रिहाई मिल जाएगी? बिल्कुल मुमकिन है। और अभी यही जब चौधरी परवेज इलाही के वकील आमिर सईद राह यहाँ पे बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हमारी टीम तो अभी हत्तुल इम्कान थी कि उनको लेकर जाते, लेकिन अब क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जेल हुकाम ने उनको मना कर दिया है और उनका कहा यह मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है, जेल हुकाम की जानिब से अभी मना किया गया है। मुमकिन है कि कल उनको रिहाई मिल जाए। बहुत शुक्रिया हसन हफीज आपका। सिंध वाली परफॉर्मेंस इस्लामाबाद में भी लाएंगे? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। वजीर आला सिंध दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से नाराज हो गए। कराची को 5वां बदतरीन शहर करार देना साजिश करार दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। कराची को बदनाम करके पहले भी सनतें मुंतकिल की गई थी, अब जब कराची तरक्की कर रहा है तो फिर बदनाम करने की साजिश हो रही है। इंटेलिजेंस यूनिट की एक खबर आई थी और उसको बड़ा फैलाया है, टोटली डिसएग्री करते एनालिसिस से। वाइब्रेंट शहर को ये तबाह करने जैसे पहले किया था ना, शहर की बुराइयां कर करके यहाँ से इन्वेस्टमेंट ले जाए, एक और ये साजिश है। जब कराची वाइब्रेंट हो रहा है तब आप इस तरीके के आर्टिकल छपवा के प्रमोट करके और ऐसी बात करें। सिर्फ कराची शहर को इस लायक समझा गया, उसके बारे में लिखा है, बाकी किसी शहर के पाकिस्तान को शायद इस लायक नहीं समझते। छोटे मोटे आर्टिकल से जो कराची के शहरियों को नाउम्मीद करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध ने तो कराची को उभरता हुआ, तरक्की करता हुआ शहर करार दिया। कराची वाले क्या कहते हैं? 5वां शहर है ये और कराची में इतनी गंदगी है कि किसी शहर में नजर नहीं आई है। और ये पैसा मिलता है, इनको फंड मिलता है, खा जाते हैं, 1 रुपये भी नहीं लगा रहे। पूरी कराची गंदगी हो चुकी है। गंदगी के अलावा यहाँ और क्या है? जगह जगह गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है, रहने के काबिल नहीं है। कराची के अंदर है क्या? पूरा सिस्टम गंदा है, अलिफ से लेके या तक। हर दिन हम यही सोच रहे हैं कि अल्लाह आज खैरियत से पहुँचा दे। अथॉरिटी डेलीगेट हुई भी है, वो अपने हिस्से का काम कोई भी करने के लिए राजी नहीं है। पंजाब पुलिस के खोजी कुत्ते रिटायरमेंट के बाद बाइज्जत जिंदगी गुजार सकेंगे। पहले इन कुत्तों को रिटायरमेंट के नाम पर मौत की नींद सुला दिया जाता था, लेकिन अब कुत्तों को मोहब्बत से ख्याल रखने वाले मालिक मुयस्सर आ गए हैं। तफसीलात जानते हैं लाहौर से बाबर खान की रिपोर्ट में। कितने ऐसे मौके आए कि हादसा होने से पहले ही इन सुरागसा कुत्तों ने अमन दुश्मन और स्मगलर्स को इनके इरादों में नाकाम बना दिया। एएसपी गुलबर्ग शहर बानो नकवी का कहना है कि इससे कब्ल रिटायर होने वाले कुत्तों को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता था। रिटायर होने वाले का क्या मतलब है? तो रिटायर होने वाली तो अच्छी बात है। तो इस कहते जी नहीं, रिटायर होने का मतलब है कि इन्होंने जहर का टीका ला देना। अब आईडी साहब को ना मैंने लिखा कि सर ये यूथनेशिया प्रैक्टिस हो रहा है, तो सर का आगे से रिप्लाई है ठीक है, हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर भिजवा देते कि यूथनेशिया आज से बैन है। सुराग रसा कुत्तों को एक एनजीओ के तवस्सुत से सरपरस्ती करने वाले अफराद के हवाले कर दिया गया है। सुराग रसा पालतू जानवर को हासिल करने वाली डॉक्टर मेहरब का कहना है कि इन्हें बड़ी मोहब्बत के साथ रखा है। पहले 2-3 दिन ये थोड़ा कंफ्यूज्ड और सैड था, लेकिन अब बड़ा यूज्ड टू हो गया और इन एंड आउट होता है हमारे घर के, खेलता है, वॉक पे भी जाता है। अहम तरीन खिदमात के बाद इन पालतू जानवरों को जहर का इंजेक्शन लगाना यकीनन जुल्म था, जिसे अब रोक दिया गया है। कैमरामैन अदनान भट्ट और आफ्ताब शाह के साथ बाबर खान, एयरवाई न्यूज, लाहौर। बारात आएगी ट्रैक्टर पे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली महंगी करनी पड़ेगी, वजह IMF की डिमांड भी है और बिजली की चोरी भी। हालात ऐसी जगह पहुंच गए, तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर एक दूसरे से ताउन करना होगा। IMF मुआहिदा कोई मार्का नहीं, सिर्फ ये कामयाबी है कि डिफॉल्ट से बच गए। बिजली के नरखों में इजाफा करना पड़ रहा है। IMF की डिमांड तो है ही है, सर्कुलर डेट कहाँ ले जाए? बिजली चोरी होती है, वो कौन करता है? पाकिस्तान के हालात जिस जगह आ खड़े हुए इदारे आईनी दायरे में रहकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करें, बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ डिफॉल्ट से बच गए। इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं, हमने को बहुत बड़ा मार्का मारा। चाइना ने $5 बिलियन 3-4 महीनों में रोल ओवर की। $5 बिलियन टाइमली रोल ओवर न होते डिफॉल्ट कर चुके होते। पिछली हुकूमत ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कारी ज़रब लगाई, ताल्लुकात को हमवार करने में दिन रात एक किया। तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी, साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का धाबेजी इकोनॉमिक जोन मंसूबे की तकरीब से खिताब, कहा बाकी सिर्फ बातें करते हैं, हमने काम करके दिखाया है, इलेक्शन में हम कामयाब होंगे।
सिंध वाली परफॉर्मेंस इस्लामाबाद लाएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा 4 महीने बाद बिलावल ने ही वजीर आजम बनना है। साजिश के तहत आपकी जमात के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम चलाया गया और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी देखा है। साबित हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खिदमत करने का तरीका जो है वो बाकी के मुकाबले में बेहतर है। इलेक्शंस में हम मिलकर कामयाब होंगे और जब हमारा हुकूमत बनेगा इस किस्म की परफॉर्मेंस इस्लामाबाद में भी लेकर आना पड़ेगा। अब आपने पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर के साथ देना है, हम मिलकर कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। एक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के हिस्से हैं। उनको इंटेलिजेंस यूनिट ने पूरा एशिया 6 बेस्ट परफॉर्मिंग का जो मंसूबा है वो डिक्लेयर कर दिया। जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन चलेगा तो 1,50,000 रोजगार के मौके नौजवानों को मिलेगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट खुद ही आपको लिख के बताएगा कि ज्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए और कोई शे नहीं, और ये जल्द हो जाएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे, कि प्राइम मिनिस्टर तो 4 महीने में बन रहे हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले, वजीर दिफा ने चेयरमैन पीटीआई पर प्रोडक्ट लॉन्च करने वालों को जिम्मेदार करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने असेंबली को अफगानिस्तान से कलअदम टीटीपी को पाकिस्तान लाकर बसाने के फवाइद बताए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने 2018 में चेयरमैन पीटीआई का प्रोडक्ट लॉन्च किया। वजीर दिफा ने अपने ट्वीट में कहा, फिर जजारों को यहां लाया गया, वो लोग रोजाना शहीद होने वालों के वारिसों को भी कुछ बताएं। इन्हीं लोगों के इस प्रोडक्ट ने कौम को 9 मई का मनहूस दिन भी दिखाया। एक और ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। अफगानिस्तान हमसाया और ब्रादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहिदे की पासदारी भी नहीं की जा रही। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और कराची पुलिस के अफसर रोकने की बजाय गुटखा फरोख्त करने की इजाजत देने और रिश्वत पकड़ने में मसरूफ हैं। टीम सरेआम ने 3 डीएसपी अफसरों की रिश्वतखोरी बेनकाब की है। इकरारुल हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इकरार, जिन्होंने स्मगलिंग रोकनी है वही इस चीज में मुलव्वस हैं, तो रोकेगा कौन? जी, और यही वजह है शायद कि अब तक ये मामला रुक नहीं पाए। शहर कराची के अंदर हम देखते हैं कि कैंसर के अस्पताल मरीजों से अटे हुए, एड़ियां रगड़ रगड़ के नौजवान मरने पर मजबूर हैं और जाहिर उनकी माएं जवानों की लाशें उठाने पर मजबूर हैं। आप अंदाजा कीजिए, अगर एक शहर के अंदर 3 डीएसपीज की सतह के अफसरान रिश्वत ले रहे हैं, इस बात की मंथली वसूल कर रहे हैं, इस बात का हफ्ता वसूल कर रहे हैं कि उनके इलाके में आप जिस तरह से मर्जी चाहे गुटखा फरोख्त करें, मावा फरोख्त करें, आप जली ऑयल फरोख्त करें, आप ईरानी डीजल की स्मगलिंग करें, तो वहां पे किस तरह से आप इसकी खरीदो फरोख्त रोक सकेंगे? उस शहर के लोग किसके पास जाएं? अगर एक ही शहर के 3 डीएसपीज जिनका काम है, जिनको ये अवाम अपने पेट काट के अपने टैक्स के पैसों से तनख्वाहें फराहम करती है, जिनके लल्ले तलल्ले और जिनकी मुराद जो है वो इस अवाम के टैक्स के पैसों से जाती है, तो अल्टीमेटली ये अवाम फिर पुलिस के पास जाए, ये अवाम हुकूमत के पास जाए कि किस दीवार से अपना सर टकराएं, जिनके बच्चे उनकी आंखों के सामने मौत का शिकार हो रहे हैं और जिन लोगों को इस मौत को रोकना है वो इस मौत के सौदागर बने हुए हैं। बाकायदा मंथलियां तय की जा रही है, हफ्ते तय किए जा रहे हैं और 1-2 नहीं, हमने 3 अफसरान को गिरफ्तार किया है क्योंकि डीएसपी है और जिनका काम था कि वो ठीक है। इकरार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये तमाम जो अफराद इसमें मुलव्वस हैं, जब उनको पकड़ा गया, जब उनको आईना दिखाया गया तो उनका क्या रिएक्शन था, ये देखिए। आपको हम गुटके मावे के अभी दे देते हैं, वो जो पकड़ा था वो मामला ये खत्म हो गया, ठीक है। 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, देखें 15, ये 5 और ये हो गए आपके 20। बाकी अब मैं ऑयल वाइल का जैसे ही फाइनल होता है ना मेरा, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तो मैं आता हूँ। पकड़े लगा हुआ है माइक, मेरे आपको नुकसान तो नहीं, पुलिस गुटके बेच रही है तो डाकू बच्चियां ही उठाएंगे। कंदकोट में हुआ यह वाकया, 3 साल की बच्ची को डाकू उठा के ले गए। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अली हसन मौजूद हैं। अली हसन, कुछ पकड़ा किसी डाकू को? ये बच्ची इतनी छोटी मासूम सी, कुछ हुआ है अब तक?
जी अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये कंदकोट के गुलशेरमाला ए सेक्शन थाने की हदूद है। अमान मस्जिद के करीब 3 साल बच्ची अलीशा ये अपने घर के बाहर बैठी हुई चीज लेने के लिए, तो इसको 2 मुसल्ह अफराद मोटरसाइकिल पे उठाकर ले गए। इसका बाप जो रक्षा चलाता है, रक्षा चला के वो अपने घर का गुजर सफर करता है। मैं आपको बता चलूँ कि कंदकोट कश्मीर में गुज़श्ता 2 माह में 6 के करीब बच्चे अगवा हो चुके हैं, तकरीबन 30 के करीब और दूसरे अफराद जो बड़े हैं वो अगवा हो चुके हैं। अभी तक कोई भी डाकू न पकड़ा गया है, न ही कोई मुकाबला हुआ है। अब बच्ची के वर्षा जो है वो अभी कौमी शराब ब्लॉक करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप अली बता रहे हैं, जब पुलिस मुल्जिमान के साथ मिली होगी तो फिर डाकू 1 क्या 6 बच्चे उठाएंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।